Dear students, welcome, and we are going to study fabric from fiber. We have done already, but we are going to recapitulate it. Recapitulate means that we are going to revise what we have done, and this is the most easy chapter of the whole book, I suppose, and you must not lose a single mark on this. You are not supposed to lose single mark from this chapter. So why do we wear clothes? Very simple. Why do we wear clothes? To protect us from heat, cold, but also look us. अभी तो you people know that how important is clothing. अभी दिवाली आ रहा है, कितने लोगों ने शॉपिंग कर रखी है for have a good pictures. How do you get the good picture? Not only the camera, you have to put on good clothing also. तो clothings कहाँ से आते हैं? ये जो clothes बनते कैसे हैं? Clothes बनते हैं fibers से, धागे से बनते हैं. This is fibers से बनते हैं clothes. और ये फाइबर कहाँ से आते हैं? फाइबर्स को जब वीव किया जाता है तो बनता है फैब्रिक. नाउ ये वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से आता है एज वेल एज एनिमल्स. प्लांट से क्या आता है? कॉटन, फ्लैक्स and jute. These we get from plant. Whereas animal से कहाँ से आते हैं? एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से भी we get fibers. तो एनिमल से मिलता है what? वूल सबसे इजी, सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो these are the fibers that we get from animals and plants. Again, there we use synthetic fibers. आजकल पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन, ये सब जो है, ये सारे जो क्लोथ्स हैं, these are manufactured in factories. So these are synthetic fibers. And now we will only concentrate on. Let's see what is there in the next. Write down the names of some fibers obtained from plants as well and animals. Also try to get their sample. अगर if we would have been in the regular class, तो तुम लोग का एक सुंदर सी कॉपी बनती जिसमें where you have put different kinds of fibers, fabrics in your notebook. Pasting off, that would have been the work to paste the different kinds of fibers and fabrics in your notebook. तो प्लांट से क्या मिलता है हमें? सबसे पहले तो कॉटन, वेरी सिंपल. ये दो लिखना है, कॉटन एंड फ्लैक्स. एंड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स से भी जस्ट वी हैव डन. एनिमल से वी गेट वूल एंड सिल्क. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट. एनिमल्स फाइबर. We have to concentrate here on wool. Wool and silk are two well-known animals fiber, right? Animals fiber, wool and silk. Now, wool is obtained from body coat. Body coat, हम लोग कोट पहनते हैं. उसी तरह से जो animals है, ये जो ऊपरी layer हुआ, the upper part of animal that have fine soft hair close to their skin. भेड़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा. तो this body coat of fine soft hair is called fleece. This is fleece. From where we get the wool? We get the fleece of animals like sheep, goat, camel, yak. If you have not seen the yak, it is seen in the hilly areas for making wool fibers and woolen clothes. Fibers, जब ऊन के धागे रहेंगे, उन्हीं धागों को वीव करके woolen clothes बनता है ना? Now, तो although wool is obtained from the fleece of many animals, sheep wool is the most common. जैसे कि हम just we have कि goat से मिलता है, camel से मिलता है, yak से मिलता है, but what is most common? The most common is sheep wool. We also often hear names of different varieties of wool like angora, pashmina, shatush. These are different varieties of. जैसे कि डिफरेंट क्वालिटीज़, जिसका क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा उसको अलग अलग नाम दिया जाता है. तो उसी तरह से अंगोरा, पश्मीना, शतूस, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वूल. नाउ लेट्स सी
Do you know, this is important part, you must not forget this. In India, the breeding of sheep for wool is done mainly in the states of Himachal Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Haryana and Gujarat. ये सब चीज़, ये जो है, ये MCQ में one word answer में this could be asked. The sheep are fed on grass. You know that sheep are vegetarian, so they are fed on grass, leaves, pulses, corn and oil cakes. मतलब उन लोगों को ऐसा खाना दिया जाता है ताकि अगर, क्योंकि sheep rearing हो रहा है for the purpose of wool extraction, ऊन निकालने के लिए, तो उन लोग को अच्छा खाना दिया जाएगा, तभी उन लोग का अच्छी क्वालिटी के ऊन निकलेंगे. तो उन्हें क्या खिलाया जाता है? ग्रास, लीव्स, पल्सेस, कॉर्न एंड ऑयल केक्स. ऑयल केक्स, डू यू अंडरस्टैंड? ऑयल केक्स जैसे कि अगर जैसे सरसों को अगर वो किया जाता है, पेड़ा जाता है, तो उसमें जो निकलता है, जो रेसिड्यू निकलता है, तेल निकलने के बाद जो निकलता है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है, दैट इज गुड फॉर शीप्स, तो वो उन लोग खिलाया जाता है. When a thick coat of hair or fleece develops on their skin, it is shaved off or sheared to get wool. और जब उसमें अच्छी तरह से उनका ग्रोथ हो जाता है, शीप का ग्रोथ हो जाता है, तो क्या किया जाता है? ऊपर से फ्लीस, जो अपर लेयर कोट जो है, उसको शेयर कर दिया जाता है, मतलब शेव कर लिया जाता है. नाउ ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने फिजिक्स में भी किया था. इफ यू रिमेंबर, हाउ डू वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर? इट इज बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर. तब आप लोगों ने उनको छू के देखा, बड़ा सॉफ्ट और गद्देदार लगता है. वो गद्देदार क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप्ड रहता है. एयर ट्रैप्ड होने के कारण उसमें इंसुलेट हो जाता है, मतलब ना बाहर की ठंड अंदर आएगी, ना हमारे बॉडी की जो गर्मी है वो बाहर निकलेगी. सिंस एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यू नो दैट. हम लोगों ने हीट में ये पढ़ा था. We have studied this in heat, that since air is a poor conductor of heat, it does not allow our body heat to escape. This keeps our body warm during the winters. ये भी क्वेश्चन तुम्हारे दोनों में से आ सकता है, फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है, और क्योंकि दिस लाइन हैज बीन मेंशन इन दिस चैप्टर ऑल्सो, तो दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. पूरा चांसेस है, ठीक है. तो मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस. अब है डिफरेंट स्टेप्स की फ्लीस से वूल कैसे बनता है. तो let us learn about the details of process of changing fleece into wool. ये सबसे पहला स्टेप और फाइनल स्टेप. यहाँ से यहाँ आने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है, that we are going to study. Now shearing. The fleece of sheep, fleece of what has happened, yeah, fleece of sheep along with a very thin layer of dead skin is removed from the body. और ये जो शेविंग होता है ना, उन लोग का डेड स्किन भी साथ में निकलता है. डेड स्किन है तो ऑब्वियसली अगर डेड है तो इट विल नॉट कॉज एनी पेन टू द शीप. बस ऊपर से निकाल लिया जाता है. इससे कोई शीप को कोई कष्ट नहीं होता है, मतलब इट इज नॉट टॉर्चर्ड. ओके, तो दिस इज द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद वेरी. शेयरिंग में क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस के ऊपर से डेड स्किन के साथ उस फ्लीस को निकाल लिया जाता है बॉडी से. नाउ स्काउरिंग. स्काउरिंग में द शेयर्ड जो निकाल लिया, जो फ्लीस निकाल लिया गया. अब ऑब्वियसली शीप इज गोइंग एवरीवेयर एंड इट कंटेन्स पूरा गंदगी. वो तो कपड़े पहन के हर दिन नहाते नहीं है, कपड़े पहनते नहीं है, ऐसा नहीं है कि, तो दे बिकम्स डर्टी. तो डर्टी कहाँ पर, डर्ट कहाँ पर जमा होगा? ये जो फ्लीस पर. फ्लीस क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन, उसका स्ट्रक्चर ही फ्लीस का ऐसा है कि इट विल अट्रैक्ट डर्ट. तो उसके अंदर डर्ट और ग्रीस, मतलब ऑयल वगैरह जो सिक्रेट हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में गंदगी है और उनकी बॉडी की भी जो डर्ट्स हैं वो उसके ऊपर जमा हो रहा है. तो इट हैज़ टू बी क्लीन्ड. मतलब उसको फर्दर आगे प्रोसेस के लिए उसको क्लीन किया जाता है. तो कैसे क्लीन किया जाता है? बाय वॉशिंग विद सिंपल. जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल दिया जाता है, साफ हो जाता है, उसी तरह से इसके लिए क्या, क्योंकि बहुत ये प्रोडक्शन हो रहा है, it is being produced in the large scale, so it has to be kept in the large tanks with hot water. Suitable machines are used for this process. This process is called scouring. Now let's see what's next.
So for the teacher, okay, just I said that it is not painful for the shearing is not painful for the sheep. Now sorting. This process of separating hair of different texture. अब है कि बॉडी है शीप का, तो उसमें जो हेयर होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. जो बड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, सब लोग को अलग किया जाता है. दैट इज सॉर्टिंग. ओके, तो एंड देन इट इज सॉर्टेड, फायर स्काउड अगेन एंड देन ड्राइड. उसको फिर से उसको किया जाता है. क्या किया जाता है? स्काउड, यानी उसको साफ, फिर से क्लीनिंग उसकी की जाती है. सॉर्टिंग. अब ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसीलिए कहा जाता है, बहुत जगह बच्चों को भी ये सब चीज़ में काम में लगाया जाता है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट. तो सॉर्टिंग इज़ अ हैजार्डस जॉब. हैजार्डस मीन्स जो हेल्थ के लिए सही नहीं है जॉब, बिकॉज द पर्सन इन्वॉल्व में गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स इज अ बैक्टीरिया. Sorting is a hazardous job because anthrax bacterium से cause होता है, जिसके कारण उन लोग कौन सा डिजीज हो जाता है? सॉर्टर डिजीज. नाउ आफ्टर सॉर्टिंग सारे को सेपरेट कर लिया गया. द डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीस हैज बीन सॉर्टेड. नाउ इट्स द टाइम फॉर डाइंग. मतलब कि वो तो ज़्यादातर कलर कौन सा होगा? जो शीप का जो कलर है, रॉ फाइबर्स आर देयर फॉर डाइड. तो नेचुरल कलर जो है उसका या तो वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है. बट यू सी देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ वूल. हम लोग एक ही रंग का स्वेटर नहीं पहनते. वी वियर डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ स्वेटर. तो उसके लिए क्या किया जाता है? डाई. डाई मीन्स कलरिंग. एंड देन जब ये काम, आफ्टर दिस वर्क, स्पिनिंग. स्पिनिंग इज the raw and dyed fibers are then twisted to make the threads called yarn. Yarn means fiber, वो जो धागा, और उसी धागा को बिन करके बनाया जाता है. The yarn threads may be long or short in size. The longer threads are usually knitted to make sweaters, mufflers, caps, gloves, socks. जो लंबे धागे होते हैं उनसे तो ये बनता है, लेकिन जो छोटे वाले होते हैं, the shorter threads are woven to make woolen fabrics which are used for making coats, trousers, jackets. अब ये you will get to know more about कि ये होता कैसे है. Let's stick to the chapter कि ये कैसे next क्या है. Now it is silk. Another animal product is silk, and it is obtained from silkworm, which feed on leaves of mulberry plant. I have shown one video in the last class. I shared one video that is a fantastic video, that how the silkworm is reared. मतलब सिल्क वॉर्म की खेती कैसे होती है, उसको कैसे रियर किया जाता है, कैसे उसको यूज करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क ऑब्टेन किया जाता है. Now see here. डिफरेंट तस्सर सिल्क होता है, भागलपुरी सिल्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क्स आर देयर. तो यहाँ पर है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट. इट इज योर एक्टिविटी, जस्ट यू डू इट. ट्राई टू. अच्छा, घर में मम्मी की साड़ी या फिर कुर्ते या फिर कुछ, यू जस्ट सी हाउ इट फील्स. सारी साड़ियाँ जो मम्मी की हैं या फिर जो भी तुमने कभी सिल्क को छू करके एहसास करने की कोशिश की है, यू हैव ट्राइड दैट हाउ इट फील्स. शाइनिंग है, स्मूथनेस, स्ट्रेंथ, क्या वो बहुत मजबूत है या फिर बहुत शाइनी है, तो क्यों है ऐसा? तो यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, नाउ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम. तो ये सिल्क घर में है, सिल्क की साड़ियाँ हैं, सिल्क के कुर्ते हैं, सिल्क के शर्ट वगैरह, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क. तो ये आता कहाँ था? फ्रॉम वेयर डज इट कम? तो ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ. इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो लास्ट वीक, please go through it. That video is very good. You will have a very clear understanding how the silkworm is reared. Now, the silk moth is large with white insect. A female silk moth lays hundreds of eggs which are stored at a suitable temperature. These eggs
eggs hatch to produce larvae which are called caterpillar. These are the questions. These are all 1 mark question which may come in your exam. So, or silkworm. It means larva are caterpillar or silkworm. It means caterpillar or silkworm is same. These larvae are kept in clean boxes which they feed on fresh mulberry leaves for about 25 to 30 days and grow in size. The caterpillar then secretes a liquid. अब कैटरपिलर जो है वो अपने लिक्विड सिक्रेट करता है जो कि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है इट चेंजेस इनटू प्रोटीन हार्ड फाइन थ्रेड के फॉर्म में ये टर्न हो जाता है, दैट कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज वो जो थ्रेड है एक्चुअली एक प्रोटीन, अ टाइप ऑफ प्रोटीन इज दैट. द कैटरपिलर कवर्ड इटसेल्फ कंप्लीटली. कैटरपिलर पूरा अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना कहावत भी होता है, यू आर व्हाई यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन टू कुकून. मतलब एक कहावत भी बन गया है कि कुकून के अंदर नहीं रहो, मतलब उससे बाहर निकलो. तो इट्स जस्ट अ प्रोवर्ब कि कुकून मतलब उसकी कुकून की जिंदगी क्या होती है, उस जो थ्रेड बनाया उसी के अंदर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है. दैट्स इट. तो इसी के कारण बोला जाता है कि कुकून से बाहर निकलना चाहिए, मतलब अपने आप को एक्सपोजर देना चाहिए. एंड इट्स जस्ट अ लिटरल मीनिंग, मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो कंप्लीटली विद दिस फाइन फाइबर्स द कवरिंग इज कॉल्ड द कुकून. द सिल्कवर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मॉथ इनसाइड द कुकून. कुकून के ही अंदर उसकी वो सिल्क मॉथ बन जाता है. नाउ सी दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ silkworm. It is there in your book. Yeah. Just see how it is changing into the egg is turned into moth coming from the cocoon. Then it turns into silk moth. Then silk moth and eggs, and then it turns into silkworm or caterpillar. This is cocoon. यहीं से सिल्क निकलता है. ये जो cocoon है, अब अगर इसमें से सिल्क मॉथ अगर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा. अगर ये टूट जाएगा तो इस छोटे छोटे धागे जो सिल्क का जो थ्रेड है दैट वो खराब हो जाएगा, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे. दैट विल बी ऑफ नो यूज. तो क्या किया जाता है, जब इसी फॉर्म में रहता है, कोकून बनता है, उसी टाइम में इसको स्टीम वगैरह दे करके डेड कर दिया जाता है. जो इसके अंदर जो इंसेक्ट है, उसको वॉर्म है, उसको डेड कर इट डाइज इनसाइड एंड द थ्रेड इज एक्सट्रैक्टेड. द कुकून आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज टू द स्टीम, है ना. द कुकून आर एक्सपोज्ड एंड टू द स्टीम. द सिल्क फाइबर देन सेपरेटेड आउट फ्रॉम द कुकून. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग. अब अगेन जस्ट लाइक वूल 2-3 कलर का ही होता है, ग्रे, ब्राउन एंड ब्लैक. तो अब यहाँ पर भी जैसे सिल्क का थ्रेड भी बहुत कलर वैरायटी में नहीं है, तो इट हैज टू बी डाइड इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर कलर. नाउ spinning and weaving, the silk fibers are to give a better color, different texture, different color. In fact, to silk fiber, it is dyed. इसको color किया जाता है. Spinning and weaving, and when after coloring, the silk fibers are then spun into threads which are woven into silk cloth. और हमारे पास silk के कपड़े आ जाते हैं उससे. या तो फैंसी ड्रेस बनाइए या फिर साड़ी घर में रहे, सिल्क कुर्ते बनाइए, शर्ट्स बनाइए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट. नाउ चाइना रैंक्स द फर्स्ट. चाइना से ही ये सिल्क प्रोडक्शन शुरू हुआ था, बट नाउ चाइना इज द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. और लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है. इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वाइड वराइटीज ऑफ सिल्क. ओके, दिस चैप्टर completes. And I would like to tell, as I always say, that keywords are very important. This just one liner, these are very important. You must learn it by heart. और ये बहुत जल्दी याद हो जाता है, believe me, and it is very effective in fetching the marks, 1-2 marks. Even question answers में भी this is very effective. So you must learn keep in mind, you must learn all the keywords by heart.
of all the chapter. Apart from that, this is also one of the most important part of that is the summary of the whole chapter. और टेक माई वर्ड्स, अगर आप लोगों ने इतना सारा याद कर लिया है तो इस चैप्टर में से यू विल ऑलमोस्ट गेट 80 to 90% मार्क्स. अगर इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन, इफ 10 नंबर का आता नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग इफ देयर इज 10 मार्क्स क्वेश्चन तो आराम से आप लोग को 8-9 नंबर आ जाएगा. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भी याद करें, बस 2 चीज याद कर लो, यू विल गेट ऑलमोस्ट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर. सो learning part is yours, so please do not forget this to learn. Let's do it. It's very easy, you can do it. So the hairy body coat of sheep and goat is called fleece. Okay, shaving of the body coat of sheep is called shearing. I am not able to write properly, I hope it will work. Cleaning of fleece to remove dirt and grease is called scouring. Okay. And the process of separating hair of different texture from the fleece is called sorting. आराम से you could have sorted in the class. अगर ये सारा fill in the blanks if we have done in the class, कुछ और ही मजा होता है. द rearing of silkworm to obtain silk is called sericulture. Sericulture. And then the process of this is reeling. Reeling. My writing, Gandhiji said that you need to keep, if your handwriting is not good, it signifies your incomplete education. So please, dear children, must pay attention to your handwriting also. The silk thread is made up of what? Protein. Please, writing, I need to thoda protein. And then synthetic fibers are it has to be done true false. We will do just the true false. Thereafter we will move for the next part in the next class. Synthetic fibers are manufactured in factories. Is it true? Bilkul true. As air is a good conductor of heat. False. And scouring is the process of removal of fleece of sheep. नहीं, क्या होता है वो scouring? Shearing होता है ना. Okay, so this is false. The process of twisting of raw and dyed fiber is known as sorting. नहीं, the process of twisting. No. This sorting तो नहीं होता. Sorting तो separate किया जाता है. So this is also false. Silkworms feed on mulberry leaves. Very true. इसको हम लोग true कर देते हैं, छोटा सा. And then larvae secretes very fine filament made up of protein. True. And then the reeling is the process of getting silk fibers from cocoon. True. So that's all for today. Revise whatever we have done today. In the next class we will move for the next part, that is question answers. What is there? Okay, we can complete the MCQ part. That's very easy and it won't take much of the time. चलो हम लोग कर ही लेते हैं. तो what is this? The correct option, you have to just tick the correct option. The process of removing fleece along with a very thin layer of dead skin of the sheep is called, yeah, you're correct, this is shearing. Next is yeah, which of the following animal does not yield wool? कौन सा नहीं लेता है wool? कौन नहीं बना देता है? Of course buffalo का ऊन के बारे में तो आपने कभी सुना नहीं. तो buffalo doesn't yield wool. The caterpillar of silkworms feed on mulberry leaves. The egg of silk moth
hatches into a what? Caterpillar or larva? Caterpillar or larva? Caterpillar. Now, the process of taking out silk threads from the cocoon is called reeling. Chalo, that's all for today, and we will move to the next part. This one we will do it in the next class. Till then, you revise whatever we have done, and don't forget to learn the keywords and things to remember, and keep on revising. It's important to revise and keep your mind abreast with the chapter. Okay, thank you. Bye bye.